हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का हिस्ट्री का चैप्टर यानी इतिहास का चैप्टर नंबर 8, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया बिटवीन AD 750 टू 1200, यानी इसका अर्थ यही हुआ कि 750 से लेके 1200 ईसा के मध्य, ठीक है, भारतीय जो है परिदृश्य कैसा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार के हो, NIOS के, CBSE के हो, चाहे UPSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। हर एक बच्चे के लिए सिलेबस जो रहेगा मान्य रहेगा, क्योंकि इसमें जो उनके सिलेबस के अंतर्गत ही ये सारे जो परिदृश्य आपके समक्ष रहेगा। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Important topic here are nature of the state. There is the most important. They are part of India between AD 750 to the 1200. Their nature of the state here. The state structure is a period has often been to describe as a decentralized. Decentralized here is a political system. And what is a decentralized is a polity. There is a most important question here. What is a decentralized polity? It is a system in which there is of course, the king as the main authorities at the top. There is a king of the main authorities of top, but the share is a rule with the other small chiefs is called to federatrix or samantas. There is a most important. There is a today of the political party. You may be wonder how to the samantas were. Well, the term of samanta is basically referred to a king who has been to defeated, but his kingdoms has been restored to him. But there is a condition that will be a continue to accept the overlordship of the squarings, and the king also play a regular tribute to him as a cash or king. He may be also asked to the help with the military assistance and the time of need, as this chief enjoy the freedom of administrations over their regions, and they are quite powerful. Surely you can guess that these chiefs could be be a threat to be a overlord, and no is a wonder is whenever there was a weak king at the top, and they would be assessed to their independent is a leadings to be a break up of the empire. And the presumably it was that happened during the last day of the Pratihara empire, as I mentioned above. Another aspect there, decentralization politics was centralized by the practice of the making a land grant to the Brahmins and the other. This practice was initiated by the Satyavahans, the king in the 1st and 2nd century AD. But after the Gupta period, it has become a normally practiced all over the country. Now, land is a grant come to the made not only to be religious person and institutions, but to state officially as well. They did not so happen, and it is a suggest that one of the reasons for the increase in the land grant during this period and was the decline in the trade, and therefore the storage of the coin money to pay the officially and other for their service. The shortage of the coin money in the post-Gupta
period is indicated by their absence of the presence of coin in the archaeologically is a find, and the land is granted to this is a domes, and the receipt of grant was tax free. There is a donors did or not pay of any tax to the state and used to the produce, and the income on its form is officially is the man managing their land denoted by him. Thus, this adornance is there is a converted to the land granted to them into the dependent island of authorities with no or little center control. In the Chol kingdom in South India, the structure of administration was the slightly is different, and here at the village level, as a great amount of autonomy was enjoyed by their local people, and they localized after their administrations with the help of the self-selected local bodies. And two types of village is assembly are the mentioned in the records, and these were to the known as the Sabha, and the old is the Sabha, and their assembly in the village which were inhabited predominantly by the Brahmins, whereas you are was in the known Brahminical is a settlement, and this assembly looked after the local public work, tax collection, temple management, etc. With the help of the member elected through the produce set by their villagers, it was a unique feature of the Chol administration as the represented is the harmonious is a balance between the center authorities and the local self-government. यहाँ पर देखा जाए तो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो आया है शासन की प्रवृत्तियाँ। देखिए शासन की प्रवृत्तियाँ आप सोच रहे होंगे किसके अंतर्गत है, तो ये अंतर्गत है आपका 750 से लेके 1200 ईस्वी के मध्य भारत की जो है परिदृश्य कि भारत का इस समय कैसा परिदृश्य था, कैसा था। तो इसमें हम शासन की प्रवृत्तियाँ भी जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते शासन की जो है तत्कालीन ढांचा प्राय विकेंद्रीकरणित और राजनीतिक पद्धति के रूप में दर्शाया गया था। विकेंद्रिक तंत्र राजतंत्र क्या है? देखिए विकेंद्रीकरण होता क्या है, आखिर विकेंद्रीकरण का क्या आशय है? कहते हैं अगर देखा जाए विकेंद्रीकरण वह प्रणाली है जिसमें निस्संदेह सर्वोच्च पद पर जो है राजा होता है, और किंतु वह अपना शासन जागीरदारों अथवा सामंतों जैसे उप प्रमुख्य की सहायता से करता है। जैसे आजकल के समय में भी आप देखते होंगे कि राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो होता है मुख्य शासक नहीं होता है, वहाँ प्रधानमंत्री होता है, उसका मंत्री परिषद होता है। जो प्रधानमंत्री जो है अपने मंत्री परिषद में शक्तियों को बांट देता है, और ये सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति का ही होता है। तो वहाँ पर जो है सारे के सारे कार्य जो होते हैं मंत्री परिषद द्वारा निभाए जाते हैं। तो सेम ऐसा ही कंडीशन यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि निसंदेह सर्वोच्च पद पर जो है राजा ही होता है, किंतु वह अपना शासन जागीरदारों अथवा सामंतों जैसे उप प्रमुख के सहयोग से करता है। समान व्यवस्था के तरफते ऐसे शासक से था जो पराजित हो जाते थे, किंतु उनका राज्य उन्हें इस शर्त पर वापस मिल जाता था कि वो विजय राज्य की अधीनता स्वीकार करेंगे तथा उसके नगद तथा अन्य प्रकार के शुल्क की आपूर्ति भी रहेंगे, और आवश्यकता के समय वह सैन्य सहायता भी करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है समानता का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर समानता का साफ शब्दों में अर्थ ये होता है कि राजा जिस राजा पे विजय प्राप्त कर लेता है उसको जो है राज्य नहीं छीनता है, उसको राज्य जो है आपस लौटा देता है। लेकिन राज्य लौटाते समय कुछ शर्त रखी जाती है कि वो जो है मेन राजा जो है जो महाराज है उसको वो टैक्स देगा, और जो है समय समय पर जब पड़ेगा तब वो अपने शक्ति सैनिक को भी जो है राजा के हाथों सौंपेगा। तो इस सारी बातें के अंतर्गत जो है समानता आती है, क्योंकि ये समानता अपने क्षेत्र में शासन करने के लिए स्वतंत्र होते थे। यानी ये नहीं है कि इनके ऊपर जो है किसी तरह के जो है प्रतिबंधित होते थे। जैसे आप देख सकते हो कि हमारे अभी के समय में राजनीतिक में ये होता है कि हर क्षेत्र में जो होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं, और मुख्यमंत्री जो होता है अपने क्षेत्र में बिल्कुल स्वतंत्र होता है हर एक डिसीजन के लिए। तो सेम वैसा ही था, लेकिन ये जो है सेंटर से ही चलाया जाता है। सेम यही कंडीशन कुछ देखने को उस समय भी हमें मिला था। कहते हैं क्योंकि ये समाज अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते थे, अंतर वो बहुत शक्तिशाली भी थे। अब अपना अनुमान लगा सकते हो कि ये जो है सरदार शासन के लिए खतरा भी हो सकते थे। कभी कभी ये खतरा भी होते थे, तो उनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और कभी कभी तो अगर कोई शासक मजबूत हो जाता था
तो वो अपना जो है खुद को स्वतंत्र भी कर देता था। जब हम गुलाम वंश पढ़ेंगे तो देखेंगे कि गुलामों ने अपने आप को स्वतंत्र राजा कैसे बना लिया। दीदी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि दुर्बल शासक के समय ये बगावत का झंडा उठाकर अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित कर लेते थे और ऊपर दिए गए प्रतिहार साम्राज्य के साथ ही यही हुआ था। यानी गुप्ता जो है वंश का जो है खत्मा इसी कारणों से हुआ था और प्रतिहार वंश का भी जो है इसी तरह से जो है विघटन हुआ था, क्योंकि वो राजाओं को अधीन छोड़ देते थे और ये राजाएं अपने आप को पावरफुल बना के राजाओं के प्रति जो है संघर्ष छेड़ दिया करते थे। विकेंद्रीकरण राज्य व्यवस्था का अन्य पहलू ब्राह्मणों तथा अन्य को जो है भूखंड दान करने की प्रथा में भी देखा जा सकता है। यानी उस समय जो था ब्राह्मणों को अधिक मात्रा में भूखंड दान से प्राप्त होता था और इस परंपरा को जो है सातवाहन वंश के शासकों ने प्रथम तथा द्वितीय शताब्दी में आरंभ भी कर दिया था। यानी ये जो प्रथा चलाने का श्रेय किसको जाता है? सातवाहन वंश को। ये ऐसे क्वेश्चन जो है यूपीएससी एग्जाम में हमेशा रहता है। ये क्वेश्चन आपको जो है बुकों के अंदरों से ही मिलेगा, आपको एमसीक्यू के अंतर्गत नहीं मिल सकता है। किंतु गुप्त साम्राज्य के शासन के पश्चात तो यह संपूर्ण भारत में प्रचलन में आ गई थी। अब भूखंड का दान जो है मात्र धार्मिक व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि कुछ राजकीय अधिकारी को भी दिए जाने लग गया। देखिए भूखंड की जो बात थी वो सिर्फ पहले उस समय ब्राह्मणों के दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जो राज्य करते थे उनको भी भू जो है देने लग गए। तो इसका मतलब था कि उनके पास जो है खजाना की कमी थी। इसके क्या कारण थे? माना जाता है कि व्यापार में लगातार पतन की स्थिति ने इस काल में भूमि दान के करने की परंपरा जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उस समय जो था धन की मात्रा बहुत कम गई थी और इस कंडीशन में जो है जागीर देना एक स्वाभाविक बात था, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य को उनकी सेवाओं का भुगतान करने के लिए मुद्राओं का अभाव चल रहा था उस समय। कहते गुप्तोत्तर काल में जो है प्राथमिक खोज में सिक्कों की उपलब्धता न होने से पता चलता है कि मुद्राओं का अभाव हो गया था। देखिए जब यहाँ पर जो है बहुत से स्कॉलर ने जब यहाँ खोज किया तो इन्होंने पाया कि इस समय के दौरान कोई भी सिक्का का आविष्कार नहीं हुआ और कोई भी सिक्का चलाई नहीं गई। इससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि उस समय सिक्कों का अभाव हो गया था, जिस कारण से जो है इस समय जो है राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल ही दुर्बल हो गया। दान में मिलने वाली भूमि का जो है मुक्त होती थी, यानी जो दान में मिलता था उसकी कोई कर नहीं लगाई जाती थी, अर्थात दान प्राप्त करने वाला व्यक्ति शासन को कोई भी शुल्क अदा करने के लिए बाध्य नहीं होता था। जैसे आज के समय में जो मंदिरों में दान करते हैं, ठीक है, उनको जो है कर मुक्त कर दिया जाता है। सेम ऐसा ही यहाँ पर भी है कि जिनको दान में मिलता था कोई भी राज्य उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था। समझ गए ना? तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उस भूमि का उपयोग किया करते थे, क्योंकि इसमें जो है टैक्स भी देना नहीं पड़ता था, इसलिए व्यक्ति जो था अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करता था। दान प्राप्ति करता दान की गई भूमि पर किसी भी शासकीय हस्तक्षेप से मुक्त है, यानी कोई भी जो है शासक उस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगा सकता था। इस प्रकार दान प्राप्त करने वाला दान में मिली भूमि को अपनी अधिकार में ले लेता था। तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आती है। दक्षिण भारत में चोल शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ी भिन्न थी। कहते हैं ग्राम स्तर पर स्थानीय लोग जो है स्वशासन का आनंद उठाया करते थे। स्वयं द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सहायता से वह अपने शासन की देख रेख भी किया करते थे। यानी उस समय जो है लोगों के द्वारा एक व्यक्ति को निर्वाचित किया जाता था, जैसे हमारे आज के समय में होता है। यानी आपके द्वारा किसी व्यक्ति को आप चुनते हो जिसको आप मुख्यमंत्री बनाते हो, ठीक है, और उसके द्वारा ही शासन किया जाता है और देख रेख किया जा करता था। अभिलेखों में दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख हमें प्राप्त होती है, वो थे सभा और उर। ब्राह्मणों द्वारा जो है वंशागत रूप से शासित ग्रामों की समितियों की सभा कहा जाता था, जबकि गैर ब्राह्मण प्रभुत्व वाली समितियां जो है उर कहलाती थी। ये समितियां ग्रामीणों द्वारा एक निश्चित प्रणाली के तहत निर्वाचित सदस्यों की जो है सहायता से जन कल्याणकारी कार्य कर संचार तथा मंदिर प्रबंधन जैसे कार्य के लिए उत्तरदायित्व का ये निर्वाह किया करते थे। यह चोल शासन की एक अनुपम विशेषता थी, क्योंकि इससे केंद्रीय सत्ता तथा स्थानीय स्वशासन के बीच बेहतर संबंध का पता हमें चलता है। The next topic is the most important here, a social and economical change. There is a part of here India between AD 750 to the 1000
200. There is the most important. The earlier is a medieval period was also marked by many social and economical changes. And social and important phenomenon of this period was the proliferations of are increasing in a the number of castes is how did it happen? There is a most important question here. What did it happen? One of the reason for it was the in conclusion of the as a neighbor or group in the Brahminical society. It is suggests that is the number of land grant increasing. New areas where to the both under is a cultivation. It's a made a local tribe as a people leave to the hunting as their main professions and take of agriculture. There where is the transport made to the into the present means a farmer and the assimilated in a society as a Shudra. The land grant in fact resulting in there is a movement and migration of Brahmins to different internal area where they were are able to introduce and enforce there is a Brahminical social value. The land grant is led to be increasing in the number of Kashyatha is class. The Kashyatha is where basically scribe and they specialize in the drafting and readings and land grant of document. There is the most important here. Kashyathas is a basically scribe, especially a drafting, written and grant of document. Naturally, with increasing the number of the land grant, there is important also increased. What the most important feature of this period was the rise of the new class of people is called Rajput, such as the Chauhanamans and the Paramaharas and the Pratiharas and Chandelas, etc. And some historians is believe that they were the descendant of the various group of the forerunners is invaders such as the Shakas, Shakans and the Hushan and etc. And who has been to coming to the India from northwest is during to different time of history. And these people are gradually settled down in their regions of Rajasthan and other intermarriages within the Indian society and emerge as the warrior class. There are other who is trade them to the part of the Kshatriyas is a one of the Brahmanicals of system. But today is a many scholars see to a connection between to the rise of Rajput class and the extension of the agricultural activity in Rajasthan. It is the pointed out there the spirit of the land grant there was an increasing in the number of agricultural settlement. As a result, many local chiefs come to be acquired enough of financial and political power to set off an important authorities. In order to acquire legitimacy and authority of their newly acquired position in the eyes of their subjects. And they invited the Brahmins from Gangotri and other regions to perform to them to royal rituals and ceremony. There is the most important here rituals and the ceremonies and the returns give to them to land and other things as a fee is a dakshina. There is other things as a fees is called to the dakshina. There are also made of Brahmans are written about there is a illustrations, a secretary is a linkings them with the Lord Rama of the solar race. And there's a Lord Krishna of the universe race to claim as a defended to position of the warriors class. There is a most important here. Economically, their first phase is AD 750 to AD 1000 is believed to be one of the decline. It is evident from the absence of the coin from exchange and the decline a condition of the town in their northern India. But in there is a second phase after AD 1000 we are notice various of trades activities. Not only do we have become across to new gold coin, there are also is a numerous reference to be trade, a good and town. Trade goods and the town, there is the most important, but could be a reason for it. There seem to be a two main reason for it. One, there is was increasing agriculture activity on account of land grant to the fresh area. It's a lead to the surplus is a production of good for exchange. And second, there is urban trades has emerged on the coastal area of India as important players in the international sea and trade. The Arabs had to acquire a foothold in the scene in as AD
712 and the later gradually there are set up their settlement all along the sea from the Arabia to the China. This settlement is a serve as important channel for the sale and purchase of Indian goods and thus the help in the growth of Indian external trades. In the South India, the Chol king is maintained a close commercially contact with the Southeast Asia. There are Malayas, Indonesia, etc. and the China. Here show the most important South Asia map. There is a most important for here and there is a mention of the area. There is a this time of trading system in all over the world. There is a most important map here show the all area on the world कंडीशन द इंडियन एंड देयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल्सो। हमारा जो अगला पॉइंट है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। आखिर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किसके अंतर्गत है? तो देखा जाए 750 से लेकर 1200 ईस्वी के मध्य भारतीय परिदृश्य के अंतर्गत ये हमारा टॉपिक आया है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। आरंभ मध्यकाल में कई सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन भी हमें देखने को मिला। सामाजिक दृष्टि से इस काल का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जातियों की संख्या में वृद्धि होना था, यानी जातियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि देखने को मिला इस समय काल में। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर हमारे में समझ में आता है कि ये कैसे घटित हुआ, कैसे यहाँ पर जो है अधिक धर्मों का उदय हुआ। इसका एक प्रमुख कारण था ब्राह्मणों में एक नए समूह का समावेश रहा। समझा जाता है कि जो है भूदान में वृद्धि हुई, कृषि के दायरे में नए क्षेत्र भी आने लग गए। इसे स्थानीय नागरिकों के शिकार करना त्यागने तथा कृषि को अपनाने की प्रेरित किया गया और ये कृषक के रूप में सामने आए तथा समाज में क्षुद्र के रूप में स्थापित हो गए। वास्तव में भूदान की परंपराओं ने विभिन्न आंतरिक प्रांतों में ब्राह्मणों के स्थान परिवर्तन तथा प्रवास को जन्म दे दिया। यहाँ वो अपनी ब्राह्मणवादी संस्कृति को जो है पल्लवित और जो पोषित कर सके। भूदान के जो है कार्यस्थलों की संख्या में एक वृद्धि होने लग गई और कार्यस्थ जो है मूलभूत लिपियों थे और तथा भूदान के लेख पत्रों के लेखन में दक्ष थे। स्वाभाविक रूप से जो भूदान में वृद्धि हुई, कार्यस्थलों के महत्व को भी काफ़ी महत्वपूर्ण वृद्धि होने लग गई। किंतु इस युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता नए राजपूत वर्ग का उदय रहा, जैसे चौहान परमार तथा चंदेल इत्यादि। बहुत से इतिहासकार के अनुसार वो विभिन्न विदेशी शासकों जैसे शक, हुन, कुषाण इत्यादि के वंशज थे, जो इतिहास में विभिन्न युगों में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भारत में आ गए थे और धीरे धीरे वो व्यक्ति राजस्थान के निवासी होके रह गए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। भारतीय समाज में शामिल होने के पश्चात योद्धा वर्ग के रूप में ये उभर कर सामने आए और कई इतिहासकार इन्हें जो है ब्राह्मणवादी समाज के क्षत्रिय वर्ग के रूप में भी देखते हैं। किंतु वर्तमान में कई विद्वान जो है राजस्थान में राजपूतों के उदय कृषि गतिविधियों की प्रगति में कुछ संबंध मानते हैं और यह स्पष्ट है कि भूखंड दान करने में वृद्धि होने पर कृषि जब वास्तविक में वृद्धि हुई थी। परिणाम स्वरूप कई स्थानीय प्रमुख के पास अपनी स्वतंत्र इकाई की स्थापना करने के लिए पर्याप्त आर्थिक राजनीतिक शक्ति थी। अपनी नवीनतम स्थिति की जब प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए उन्होंने गंगा क्षेत्र के ब्राह्मणों को कर्मकांड तथा शाही उत्सव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया तथा बदले में उन्हें भूमि दक्षिणा के रूप में दी गई। उन्हें ब्राह्मणों को अपने विषय में राम, सूर्यवंशी, कृष्ण चंद्रवंशी के वंशज होने के बारे में भी लिखने को प्रोत्साहित किया। यानी जो राजा हुआ करते थे उनको अपने आप को राम, सूर्यवंशी, कृष्ण चंद्रवंशी के रूप में काफ़ी प्रोत्साहित किया गया, जिससे वो योद्धा वर्ग में एक जो है सम्मानजनक स्थिति को कायम रख सके। तो यहाँ पर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है आपके समक्ष आया है कि इन्होंने ब्राह्मणों को अपने विषय में राम, सूर्यवंशी, कृष्ण चंद्रवंशी के रूप में उन्होंने प्रोत्साहित किया और लिखने के लिए प्रेरित किया। आर्थिक रूप से जो है प्रथम चरण 750 से लेकर 1000 ईस्वी में पतन का काल माना जाता है। यानी ये काल जो था इन वंशों का पतन का सबसे इम्पोर्टेंट काल अवधि माना गया। यह सिक्के के आदान प्रदान उत्तर भारत में नगरों की स्थिति जब वर्तमान स्थिति से हमें ज्ञात होता है। किंतु सन 1000 ईस्वी में द्वितीय चरण में इस व्यापारिक परिस्थिति में सुधार की अवस्था देखते हैं। न सिर्फ हमें इन मुद्राओं से प्राप्त होने बल्कि व्यापारिक वस्तु नगरों का भी विवरण हमें मिलता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं?
इसका कारण जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। इसके दो प्रमुख कारण प्रतीत होते हैं। पहला जो होता है, भूखंड दान देने की प्रक्रिया के फलस्वरूप कृषि में वृद्धि काफ़ी हो गई होगी, जिससे हम वस्तुओं के विनिमय के लिए अतिरिक्त उत्पादन की स्थिति पाते थे। तो दूसरा ये भी हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जाल व्यापार में भारतीय तटीय क्षेत्रों में अरब व्यापारियों का उदय हो गया हो और अरबों ने जो है 712 ईस्वी में सिंध में अपना राज्य स्थापित किया तथा धीरे धीरे उन्होंने अरब से चीन तक जो है अपना उपनिवेशिक विस्तार भी किया। और इस उपनिवेशिक देशों ने भारतीय उत्पादों के विक्रय और उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई तथा भारत के बाहरी व्यापार की प्रगति में भी सहायता किया। चोल शासकों के शासनकाल में दक्षिण पूर्वी एशिया, मलय, इंडोनेशिया तथा चीन के साथ जो है घनिष्ठ व्यापारिक संबंध हमें देखने को मिलता है। और ये सब तब समझ में आएगा जब हम यहाँ पर मैप देखेंगे। तो चलिए देखते हैं मैप में क्या दर्शाया गया है और इनके संबंध किस प्रकार जो यहाँ उजागर होती है। इस मैप में आप देख सकते हो कि उस समय के दौरान व्यापारिक केंद्र को दर्शाया गया है, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हो कि विश्व के हर क्षेत्रों में जो है इनका संबंध स्थापित था और ये लोग जो थे इस सभी चीज़ों से जुड़े हुए थे। तो देखा जाए तो उस समय व्यापार के क्षेत्रों में ये जो थे परम सीमा पे थे, पूरा उत्कृष्ट थे और हर जगह जो है व्यापार इनका जो है करने का इनकी प्रथाएं चल रही थी। तो शायद इन्हीं कारणों से जो था विदेशी जो थे भारत पे आकर्षित हुए और भारत को कई क्षेत्र में जो है अपना अधिकार स्थापित करने में जो है आगे हुए।